Hello and welcome. This is the cartoon explanation series of Book 2 Politics in India Since Independence. And this one is the second part of that series. First part I have uploaded already, and in that part, we have discussed the cartoon of the first chapter, that is Challenges of Nation Building, and India's foreign policy also. One newspaper clipping I discussed in that. Now, if you see, the second chapter is already deleted from the syllabus, era of one party dominance, and the third chapter is your planning chapter, the era of planned development. So planned development, only Niti Aayog and the National Development Council is in the syllabus. Now, as far as the era of Congress dominance is concerned, few portions of the chapter is there in chapter 5, and then you have the chapter of restoration to and challenges to Congress system. So that chapter is converted into party and party systems in India. Fine. So I am going to give those cartoons only which are there in the syllabus for this year, that is 2021. Okay. So now in that, if we see challenges to and restoration of the Congress system, this cartoon is on page number 85. Portions of this chapter is included in your chapter 5, party and party systems. And if you want a clear understanding of what is there in the syllabus and what is the content of the chapter right now, I would request you to go to the channel playlist of that chapter and see all the videos of that chapter. तो चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम में पेज 85 पे ये कार्टून आपका है. अब इस कार्टून का पहले आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए और उसके बाद फिर ये कार्टून समझना आसान हो जाएगा. तो ये कार्टून है आफ्टर द सक्सेशन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. तो लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन 1966, and after that there was a contest within the Congress party to become the prime minister. तो ये contest दो leaders के बीच में था, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में. ठीक है. तो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इसके लिए दो लीडर्स के बीच में कॉन्टेस्ट था. ये है मोरारजी देसाई, ठीक, और ये हैं मिसेस इंदिरा गांधी. ओके. तो ये दो लोगों को इसमें दिखाया है. अब उस समय पे जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी कांग्रेस की, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी मीटिंग की और उस मीटिंग में वोटिंग हुई थी. तो वोटिंग से डिसाइड हुआ था कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा. इसमें इंदिरा गांधी जीती थी क्योंकि उनको सिंडिकेट्स ने सपोर्ट किया था. सिंडिकेट्स कांग्रेस के वो सीनियर लीडर्स थे, ग्रुप ऑफ लीडर्स थे जिनका कंट्रोल उस वक्त कांग्रेस की पार्टी पे था. ठीक है. इसके बारे में भी और डिटेल चाहिए आपको तो वीडियोस आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन के देखने होंगे. तो अब ये इस कार्टून में क्या दिखाया है, इस कार्टून में ये दिखाया है कि ये एक रेस है जिसमें कि मोरारजी देसाई अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हैं और इंदिरा गांधी ऑलरेडी रेस जीत चुकी हैं और वो विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी हैं विक्ट्री कप के साथ. उनको जो लोग यहाँ पे सराउंड किए हुए हैं, जो लोग उनको चीयर कर रहे हैं, ये हैं सिंडिकेट्स. ओके. So the cartoon is showing that in this contest of who will become the prime minister after the death of Lal Bahadur Shastri in 1966, Indira Gandhi won because of the support that she got from the syndicates in the Congress. Okay, so this is what is being depicted in the cartoon. Identify any two leaders of the cartoon. You can identify easily now. This is Mrs. Indira Gandhi and Morarji Desai. Then who are the group of the people surrounding the winner? These are the syndicates, and you can write about the syndicates also in the answer if this question is of 2 marks. तो आपको syndicates के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए वहाँ पे. That they were the senior leaders of the Congress coming from non-Hindi speaking states, or they were in control of the Congress at that time. The cartoon is a reflection on which event in Indian politics, that is the contest of the Prime Minister's post after the death of Lal Bahadur Shastri in 1966. इतना आपको लिखना होगा. अब
बढ़ते हैं दूसरे कार्टून की तरफ। ये पेज नंबर 80 पे एक कार्टून है। इस कार्टून को यूजुअली बच्चे गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं, बिकॉज ये कार्टून वहाँ पर बुक में दिया हुआ है जहाँ पे आपकी एसवीडी गवर्नमेंट्स का डिस्कशन हो रहा है, संयुक्त विधायक गवर्नमेंट का डिस्कशन हो रहा है। तो उस पैराग्राफ के नीचे ही ये कार्टून दिया हुआ है। पर अगर आप कार्टून के नीचे पढ़ें तो एक लाइन लिखी हुआ है ये, दैट द कार्टून रिप्रेजेंट्स द एफर्ट of Chaudhary Charan Singh of forming a non-communist parties alliance in 1974. तो 1974 में when the students movement was going on in the country, then Chaudhary Charan Singh made an attempt to form a coalition of the non-communist parties, ठीक है, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। तो अब इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी वो उस समय सपोर्टेड थी बाय सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा जो भी पार्टीज थी उनकी एक कोalition बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इसमें जो आपको सबसे पहले जो राइडर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हैं चौधरी चरण सिंह, और इनके ऊपर देखिए दिख रहा है बीकेडी, ये है भारतीय क्रांति दल उन्होंने बनाया था उस वक्त, उसके लीडर ये थे। फिर आपको उत्कल कांग्रेस दिख रही है, फिर एसएसपी दिख रही है, एसएसपी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इस तरह करके काफ़ी पार्टीज इसमें आपको दिख रही हैं। अब ये इसमें यहाँ पे एक कैप्शन दिया हुआ है, कैप्शन इज कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। ओके, तो नो लेफ्ट टर्न का मतलब यही कि इट वाज सपोज टू बी अ कोलिशन ऑफ द नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज। Okay, the cycle is representing a coalition of the non-communist parties. That is why no left turn, keep right. We will follow the rightist ideology. Okay, तो ये है इस कार्टून का मतलब। So the cycle in the cartoon represents an attempt to form a coalition of the non-communist parties in 1974 by Charan Singh. Who are these people riding the cycle? These are the different political parties which comprised the coalition. And why do you think they are riding the same cycle? Because they wanted to be in a same coalition. That is why they are riding the same cycle. Why does the caption, oh sorry, there is a spelling error. Why does the caption on the sideboard say keep right, no left turn? Because I just explained no left turn means it was supposed to be a non-communist coalition of parties. That's why it says keep right, no left turn. Fine. Now we move to the next cartoon. It is on page 93, same chapter, Challenges to and Restoration of the Congress System. अब इस कार्टून का भी कॉन्टेक्स्ट समझिए। 1969 में in the presidential elections, that presidential elections became the cause of a split in the Congress in 1969. वो इस तरह से हुआ था कि उस इलेक्शन में जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे नीलम संजीव रेड्डी, उनके विरोध में जो वीवी गिरी थे उनको इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, और वो जीत भी गए थे उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो यही इस कार्टून में दिखाया गया है। तो ये जो हैं वो वीवी गिरी हैं जो 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीतकर इंडिया के प्रेसिडेंट बने। ये इंदिरा गांधी हैं जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और ये सपोर्ट कर रही हैं, लाइक इनके हाथ में भी देखिए आप पीछे से ये बॉक्सिंग ग्लव दिखाया गया है। तो शी वाज सपोर्टिंग वीवी गिरी इन दिस फाइट एंड वाज फाइटिंग ऑन हर बिहाफ, इट इज बीइंग सेड हियर इन द कार्टून। कांग्रेस आपको गिरी हुई दिख रही है, डिफीटेड दिख रही है, क्योंकि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो डिफीट हुई वो कांग्रेस पार्टी थी, बिकॉज कांग्रेस पार्टी के बीच की जो फूट थी, जो स्प्लिट था, that clearly came out in this presidential election. So Congress party is being shown defeated here. और ये जो हैं ये हैं एस निजालिंगप्पा उस समय के जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे और जो सिंडिकेट्स के लीडर थे। तो ये एस निजालिंगप्पा हैं जो कि कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट एंड द लीडर्स ऑफ द सिंडिकेट एट दैट टाइम। तो ये दिखाया है इस कार्टून में। अब क्वेश्चंस देखते हैं। Identifying the winning boxer and the lady in the cartoon. So he is VV Giri, winning boxer, and the lady is Prime Minister Indira Gandhi.
Identify the third person as Nijalingappa, who was the president of the Congress party at that time, and which even does the cartoon depict? It depicts the presidential elections of 1969, which finalized the split in the Congress party. इसके बाद पार्टी स्प्लिट हो गई थी। निजालिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था और इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये स्प्लिट है और हम ही ओरिजिनल कांग्रेस हैं, तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी थी इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्टून देखते हैं, ये है ऑन पेज नंबर 97। इसमें देखिए ये मिड टर्म रेस है। ठीक है, अब मिड टर्म रेस यहाँ ये डिपिक्ट करता है द इलेक्शंस ऑफ 1971। तो 69 में पार्टीज में जो स्प्लिट हुई उसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी में आ गई थी, हालांकि वो चल रही थी बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड ऑल, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी। दैट इज वाई इंदिरा गांधी रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दीजिए और फ्रेश इलेक्शंस करवाइए। ओके, तो ये फ्रेश इलेक्शंस जो हुए थे उसमें 1971 में इंदिरा गांधी जीती थी। ठीक है, और इंदिरा गांधी जीती भी थी, मैसिव विन था ये। तो इस इलेक्शन में जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने बनाया था एक ग्रैंड अलायंस। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो ग्रैंड अलायंस। ठीक है, सारी अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाया था और सीट्स का एडजस्टमेंट किया था। लेकिन जो रिजल्ट आए कांग्रेस के जो रिजल्ट आए इलेक्शन के, उसमें कांग्रेस बहुत ज़्यादा सीट्स, मोर देन 350 सीट्स कांग्रेस को मिली थी और अराउंड 48% ऑफ द पॉपुलर वोट्स। तो इस तरह से ये इलेक्शन रिजल्ट हुआ था। तो जितनी भी, और ग्रैंड अलायंस था जो उसको केवल 40 सीट मिली थी टोटल मिलाकर। तो यही जो मैसिव विन है वो इसको कार्टून में दिखाया है, दैट ऑन दीज इन द विक्ट्री स्टेड ऑन ऑल द 3 places you have Mrs. Indira Gandhi who got a massive win in the elections, and बाकी सब उनका मुंह देखते रह गए थे। Now identify the winning leader, Mrs. Indira Gandhi. What does the term mid-term race mean? It means the mid-term elections of 1971. And why the same winner is shown on all 3 positions? Because she received a massive victory in these elections, and she got around 48.4% of the popular vote and 352 seats. 352 seats and 44% of the popular votes were received by Congress. और जो CPI के साथ कोलिशन था उसमें ये सीटों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद फिर ये है इस चैप्टर के का लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट है इस चैप्टर का। 98 पेज नंबर 98 पे ये कार्टून आपको मिलेगा। ये भी 1971 की इंदिरा गांधी विन पे है। 1971 इलेक्शंस में जो इंदिरा गांधी की विक्ट्री थी उसी पे ये कार्टून है। तो अगर आपको कुछ याद हो तो 1971 इलेक्शंस में जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी उसने इलेक्शन लड़ा था एक स्लोगन पे, और वो स्लोगन था गरीबी हटाओ। ओके, और जो ग्रैंड अलायंस थी उसने इलेक्शन लड़ा था इंदिरा हटाओ। तो जब इंदिरा गांधी की विक्ट्री हो जाती है उस इलेक्शन में, तो इसका मतलब कि गरीबी हटाओ का स्लोगन जीत गया। That is why Indira Gandhi is being shown here with the victory cup, inside from which a poor person is shown begging from Indira Gandhi। कि मतलब आपने कहा है कि गरीबी हटाओ तो अब मुझे कुछ दीजिए जिससे कि मेरी गरीबी हटे। ये है इस कार्टून में दिखाया गया। सो विनिंग लीडर अगेन इंदिरा गांधी। Why does the cartoon show a poor man inside the trophy? Because it represents 1971 elections which was fought by Indira Gandhi on the slogan of Garibi Hatao. So here the poor man is expecting Indira Gandhi to fulfill her electoral promise of removing poverty from India. Then what does the massive support written on the trophy means? It means the huge number of seats that Indira Gandhi won in the elections ऑफ 1971। और कितनी सीट्स वगैरह जीती थी वो सब फिर आप वो भी लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो ये कार्टून में दिखाया है। उसके बाद लास्ट कार्टून इस चैप्टर का जो है दैट इज ऑन पेज नंबर 98, दैट पेज ओनली। नीचे देखेंगे तो ये कार्टून भी है। ये दिखाता है आफ्टर द 1971 विन
In 1972 state legislative assembly elections were also held. तो उसमें in most of the places, in most of the states, Congress formed the ministry. और जिन states में कांग्रेस की मिनिस्ट्री नहीं बन पाई थी उनमें किसी न किसी रीजंस की वजह से आर्टिकल 356 यूज किया गया था और उन गवर्नमेंट्स को डिसमिस करके वहाँ पे कांग्रेस की मिनिस्ट्री, कांग्रेस की गवर्नमेंट इंस्टॉल की थी. तो उसी को इस कार्टून में दिखाया है दैट इन दीज दिस इज इंदिरा गांधी हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम 72 एंड दीज टॉयज दे रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेट्स. तो अब स्टेट्स में ये हेड्स चेंज कर रही हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से डिफरेंट हेड्स इंस्टॉल कर रही हैं. तो उसका मतलब वही हुआ कि वो गवर्नमेंट चेंज कर रही हैं स्टेट्स की बाय यूजिंग आर्टिकल 356. Okay, so the leader in the cartoon is Indira Gandhi. Toys represent different states, and the leader is dismissing the state governments by using Article 356 and installing Congress ministries in different states in 1972. तो ये इस कार्टून में डिपिक्ट किया है. दैट इज द एंड ऑफ दिस video, and in the third video I will be continuing from here only. Thank you for watching. Bye bye.